સીટના ઇન્ચાર્જ એવા આપણા પ્રભારી માન્ય કેતનભાઈ, જિલ્લાના આપણા પાર્ટીના પ્રમુખ માન્ય અશ્વિનભાઈ, આપણા જિલ્લાના ખજાનચી ગોપાલભાઈ, નગરપાલિકાના પ્રમુખ શીતલભાઈ, જિલ્લાના મંત્રી આપણા અરવિંદભાઈ, નગરના પ્રમુખ આપણા ડોક્ટર સંજયભાઈ, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ, તાલુકાના પાર્ટીના પ્રમુખ પ્રવીણભાઈ, આપણા ભોગંબાના પાર્ટીના પ્રમુખ ગુણવંતસિંહજી, આપણા અહીંયા ઉપસ્થિત સંગઠનના સૌ મંચ ઉપર બિરાજમાન પદાધિકારીશ્રીઓ, જાંબુગોડાથી પધારેલા પાર્ટીના પ્રમુખ સુભાષભાઈ બારિયા, આપણા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ બેન, સંગઠનના બધા ચારે ચાર મંડળના સંગઠનના સૌ પદાધિકારીશ્રીઓ, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ, નગરપાલિકાના સભ્યશ્રીઓ અને ઉપસ્થિત તમામ સરપંચશ્રીઓ, સૌ ઉપસ્થિત આદરણીય વડીલો, આગેવાનો, મિત્રો, આજે આપણને વધારે ખબર છે કે 5મી તારીખે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી છે. આ ચૂંટણી આપણા સૌના માટે અગત્યની છે. 5મી તારીખની ચૂંટણી, આપણો દેશ આઝાદ થયો, 75 વર્ષ થયા અને આખો દેશ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ આજે ઉજવી રહ્યો છે. આપણે જોયું છે કે આજથી 25 વર્ષ પહેલાનું આપણું હાલોલ અને આજનું હાલોલ આપણે જોઈએ તો આસમાન જમીનનો ફરક લાગે એટલા વિકાસના કામો આપણું હાલોલ નગર હોય, આપણો ગ્રામ્ય વિસ્તાર હાલોલ, જાંબુગોડા, ભોગંબાનો હોય, એમાં અનેક વિકાસના કામ થયા છે. દેશ આઝાદ થયો 50 વર્ષો સુધી કોંગ્રેસની સરકારો રહી. કોંગ્રેસે ક્યારેય વિકાસની ચિંતા કરી નથી. કોંગ્રેસે ક્યારેય એવી યોજનાઓ નથી બનાવી કે જેનો લાભ છેવાડાના વ્યક્તિને થાય, છેવાડાના ઘરને થાય. વંચિતોના વિકાસની ચિંતા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કરી છે. મોદી સાહેબ આપણા મુખ્યમંત્રી બન્યા 2001-2માં અને ત્યાર પછી જે યોજનાઓ સમગ્ર ગુજરાત માટે એમને અમલમાં મૂકી એના સાક્ષી આપણે સૌ છે. છેવાડાના વ્યક્તિને સ્પર્શે, ગરીબ વ્યક્તિને સ્પર્શે, મધ્યમ વર્ગની પરિવારને સ્પર્શે એવી અનેક યોજનાઓ અમલમાં મૂકી. 108ની યોજના હોય, મા અમૃતમ યોજના ત્યારે ચાલુ કરી હતી, મા વાત્સલ્ય યોજના, આજે એને આયુષ્યમાન ભારત યોજનાનું સ્વરૂપ આપીને આખા દેશમાં શરૂ કરી. આપણે ત્યાં જે હમણાં આપણને અશ્વિનભાઈએ વાત કરી કે જ્યોતિગામ યોજના હેઠળ 24 કલાક લાઇટ સમગ્ર ગુજરાતને મળે, એ યોજના આપણા મોદી સાહેબે શરૂ કરી. અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એ વખતે તો એવી પરિસ્થિતિ હતી કે બરોબર જમવાના ટાઈમે લાઇટ જતી હતી અને આપણા મોદી સાહેબે 24 કલાક આપણને લાઇટ આપી. આખા ગુજરાતની અંદર જ્યોતિગામ યોજનાના અલગ લાઈન ઉભી કરી આખા ગુજરાતમાં. એના સબસ્ટેશનો ઉભા કર્યા, કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો અને 24 કલાક લાઇટ ગામે ગામ, ઘરે ઘરે આપણને મળી. મને યાદ છે આપણા રાષ્ટ્રપતિજી અહીંયા પધાર્યા પાવાગઢ અને ત્યારે અહીંયાથી એ યોજનાને આખા રાજ્ય માટે ખુલ્લી મૂકી હતી. એ વખતે એવી પરિસ્થિતિ હતી, આખા દેશની અંદર ગુજરાત એક એવું રાજ્ય હતું કે જ્યાં 24 કલાક લાઇટ ઘરોની અંદર મળે. એ વિકાસ મોદી સાહેબે કર્યો. આપણા ગુજરાતના એક એક ઘરની અંદર 24 કલાક લાઇટ મળે. પણ દેશના બીજા રાજ્યોમાં, કોઈ રાજ્યોમાં 24 કલાક લાઇટ નહોતું મળતું. એવી પરિસ્થિતિ હતી કે દિલ્હીમાં
તે વખતે કોંગ્રેસની સરકાર હતી, કેન્દ્રની અંદર દિલ્હીની અંદર રાષ્ટ્રપતિના ઘરમાં લાઈટ જાય, વડાપ્રધાનના ઘરમાં લાઈટ જાય, એને પણ જનરેટર ચાલુ કરવું પડે, પણ ગુજરાતના ગામના સરપંચની હોય એને ત્યાં 24 કલાક લાઈટ મળે. આ વિકાસ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આપણા ગુજરાત માટે કર્યો. એની નોંધ સમગ્ર દેશે લીધી. ગુજરાતની અંદર આપણે જોઈએ તો અનેક એવી યોજનાઓ કે જે છેવાડાના વ્યક્તિને, છેવાડાના પરિવારને એ યોજનાઓનો લાભ મળે. મોદી સાહેબે આપણા ગુજરાતની અંદર જે વિકાસ કર્યો એની નોંધ સમગ્ર દેશે લીધી. આખા દેશે નક્કી કર્યું કે ગુજરાતનો વિકાસ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યો છે. એવો વિકાસ આખા દેશનો કરવો હોય તો કોણ કરી શકે? આખા દેશે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આશીર્વાદ આપ્યા. 2014ની એ ચૂંટણી લોકસભાની આપણી ભારતીય જનતા પાર્ટીને સ્પષ્ટ મેજોરિટી મળી અને એવું થયું કે 30 વર્ષ પછી 2014ની અંદર કોઈ એક પક્ષને મેજોરિટી મળી હોય એવું 30 વર્ષ પછી બન્યું. 2014માં આપણી સરકાર બની, નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા અને જે ગુજરાતનો વિકાસ કર્યો, જે યોજનાઓ ગુજરાતમાં બનાવી એ પ્રમાણેની યોજના આખા દેશની અંદર આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે અમલમાં મૂકી. જ્યોતિગામ યોજના આપણા ગુજરાતમાં બનાવી ત્યારે મને ખબર છે દિલ્હીની અંદર કોંગ્રેસની સરકાર હતી, આપણને 1 રૂપિયો આપવાનો હતો જ્યોતિગામ યોજના બનાવવા માટે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જ્યોતિગામ યોજના આપણા રાજ્યના બજેટમાં, ગુજરાત સરકારના બજેટમાંથી, આપણા ફંડમાંથી આખી જ્યોતિગામ યોજના ઊભી કરી 24 કલાક લાઈટની. આજે મોદી સાહેબ દેશના પ્રધાનમંત્રી છે. એક રાજ્યોમાં 24 કલાક લાઈટ મળે એ રીતે કામગીરી આજે કેન્દ્રની સરકાર કરી રહી છે. જે ગુજરાતમાં આપણને લાભ મળ્યો આજે આખા દેશને લાભ મળે છે. મા અમૃતમ યોજના, મા વાત્સલ્ય યોજના, ગરીબ ઘર હોય, ગરીબ પરિવાર હોય અને જ્યારે એમના ઘરની અંદર કોઈને મોટી બીમારી આવે અને મોટી બીમારી આવે ત્યારે 3 લાખ, 4 લાખ, 5 લાખ જેટલો ખર્ચો થતો હોય, એ પરિવાર આખું પડી ભાગે. આપણા મોદી સાહેબે મા અમૃતમ યોજના, મા વાત્સલ્ય યોજના 2001-2માં મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી ગુજરાતની અંદર અમલમાં મૂકી. કોઈ ગરીબ પરિવાર બીમાર પડે, મોટી બીમારી આવે તો એ કાર્ડ લઈને જાય, એની સારવાર એને મળે, એ યોજના અમલમાં મૂકી હતી. આજે એક પ્રકારે આયુષ્યમાન ભારત યોજના આખા દેશમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે અમલમાં મૂકી છે. એનો લાભ આપણા ગુજરાતને પણ મળે છે. મને યાદ છે એ કોરોનાની વિકટ પરિસ્થિતિ, જ્યારે કોરોના આવ્યો આખા વિશ્વમાં હતો, આપણા હલોલમાં કે પંચમહાલમાં નહીં, આખા વિશ્વની અંદર કોરોનાની વિકટ પરિસ્થિતિ હતી. ઘરમાં કોઈને એકને જો કોરોના થયો હોય તો આજુબાજુમાં ઘરના પરિવારના સભ્યો પણ એમની નજીક જતા ગભરાતા હતા. એવા દિવસો હતા. અને એ વખતે આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા કોરોનાની એ પરિસ્થિતિમાં એ કોરોનાના પેશન્ટોની વચ્ચે રહ્યો છે, એની સેવા કરી છે. હું ઘણી જગ્યાએ ગયો હતો, આપણા બધા આગેવાનો અમે ગયા હતા કે જે જગ્યાએ જે આપણા મત વિસ્તારની અંદર જ્યાં આદિવાસી વિસ્તાર હોય, જે લોકો નોકરીએ ના જાય, લોકડાઉન હોય, એમને જમવાની તકલીફ હોય, તો આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાએ ત્યાં રસોઈ બનાવી હતી, બધાને જમાડ્યા હતા. જે કોરોનાના પેશન્ટને કોરોના પછી 14 દિવસ જ્યારે એ લોકો એમના ઘરમાં રહેતા હતા, એને ટિફિન પહોંચાડ્યું હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાએ પહોંચાડ્યું છે. પરિવારના સભ્યો કદાચ એમની નજીક જતા ગભરાય, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા એમના નજીક જતા ગભરાયો નહોતો. એમની નજીક ઉભા રહીને એમને તકલીફ હોય, એમને મુશ્કેલી હોય, એની વાત ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આપણો યુવા મોરચાનો કાર્યકર્તા હોય, મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તા હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાએ એક કામ કર્યું છે. આજે જે લોકો મત લેવા નીકળ્યા છે ને,
એમાંથી કોઈ કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં કોઈ આપણા વચ્ચે રહ્યું નથી. કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં કોઈ આપણી ખ્યાલ રાખવા નથી આવ્યું. આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, આપણી રાજ્યની સરકાર કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં ગામે ગામ પ્રાથમિક શાળાની અંદર આપણે એની સારવાર માટેની સુવિધા ઊભી કરી હતી કે ગામની અંદર જ અમને સુવિધા મળે તો શહેર સુધી જવું ના પડે. એ કોરોનાના દિવસો આજે પણ આપણને યાદ છે. અને તે વખતે જ્યારે ઓક્સિજનની જરૂર હતી, ઓક્સિજનની તકલીફ પડતી હતી, આપણા વિસ્તારમાં ક્યારેય, આપણા રાજ્યની અંદર આપણી સરકારે ક્યારેય એની તકલીફ પડવા નથી દીધી. ઓક્સિજનના પ્લાન્ટ નાખ્યા, હાલોલમાં નાખ્યો, ગોગંબામાં નાખ્યો, જાંબુગોડામાં નાખ્યો કે ભવિષ્યની અંદર જરૂર પડે ઓક્સિજનની તો ઓક્સિજનની ચિંતા આપણને ના રહે. એટલે આપણી રાજ્યની સરકારે કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં પણ આપણો એટલો ખ્યાલ રાખ્યો છે. આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાએ પણ ખ્યાલ રાખ્યો છે. આપણું હાલોલનું રેફરલ હોસ્પિટલ એને અપગ્રેડ કરીને સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ તરીકે આપણા હાલોલના રેફરલ હોસ્પિટલને મંજૂરી મળી. જેવું સિવિલ હોસ્પિટલની સમકક્ષ સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ આપણી સરકારે મંજૂર કર્યું છે. એના માટે એના પ્લાન પણ મંજૂર થઈ ગયા, એનું ટેન્ડર પણ મંજૂર થયું છે. એ કામ ચાલુ કરવાનું છે. હાલોલમાં આપણા વિસ્તારની અંદર પાઇપલાઇનમાં ગેસ આપણને આપણી સરકારે આપ્યો છે. આજે હાલોલની અંદર અને આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઘરે ઘરે પાઇપલાઇનમાં ગેસ મળે એ રીતે વિકાસ આપણી સરકારે કર્યો છે. આપણું વડા તળાવની અંદર નર્મદાજીનું પવિત્ર પાણી મળે એ યોજના મંજૂર કરી. મને યાદ છે જ્યારે આપણી રાજ્યની સરકારે યોજના મંજૂર કરી ત્યારે વિરોધીઓ, કોંગ્રેસના લોકો એમ કહેતા હતા કે આ તો ચૂંટણીમાં મત દેવા વાત કરે છે, નીવાનું પાણી કઈ મોભે ચડતું હશે, એમ કોંગ્રેસના લોકો કહેતા હતા. એમને કહેવા માંગુ છું કે તમે જાઓ વડા તળાવ જઈને જો, આજે નર્મદાજીનું પવિત્ર પાણીથી વડા તળાવ ભરાય છે. એમને જોવા જવું નથી, એમને તો હાલોલના વિકાસ હોય, આ ગુજરાતનો વિકાસ હોય, એ વિકાસના હવનમાં હાડકા એમને નાખવા છે. જે લોકો વિકાસના હવનમાં હાડકા નાખવા નીકળ્યા છે એવા લોકોને કહેવા માંગુ છું કે જ્યાં સુધી અમારા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ દેશના પ્રધાનમંત્રી છે, જ્યાં સુધી અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, ત્યાં સુધી કોઈ માયનો લાલ નથી કે અમારો વિકાસ અટકાવી શકે. આપણી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે અનેક કામો આપણા રાજ્યની અંદર, આપણા દેશની અંદર કર્યા છે. ત્યારે આજે આપણા ભારત માતા કી, भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है विनोद जी का स्वागत है. अपनी वच्चे अपना राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी उपस्थित है तो આપણે જોરદાર તાળીઓથી એનું સ્વાગત કરીશું. तावड़े जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस हालोल विधानसभा में. माता जी की ये पवित्र भूमि पर कर रहे हैं, आपका स्वागत है. આપણા વચ્ચે વિનોદ તાવડેજી આપણા રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી પધાર્યા છે, એમનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. ભારત માતા की આપણા સૌની વચ્ચે વિનોદ તાવડેજી પધાર્યા છે એટલે એમને પણ બંને આપણા મહેમાન છે, એમને બંનેને આપણે સાંભળવાના છે. એટલે વધારે આપનો સમય લેતો નથી, પણ આપ સૌને વિનંતી કરું કે આજે 2022ની આપણી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી છે, એ 2024ની જે લોકસભાની ચૂંટણી છે એની સેમીફાઇનલ છે. અને આ સેમીફાઇનલમાં આપણે એવા આશીર્વાદ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આપવાના છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપવાના છે કે 2017માં જે આશીર્વાદ આપ્યા એના કરતા વધારે આશીર્વાદ આ વખતે 2022માં ભારતીય જનતા પાર્ટીને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આપવાના છે. એ વિનંતી સાથે વધારે સમય નથી લેતો, મહેમાનોને પણ સાંભળવાના છે.
એટલે આપ સૌને વિનંતી કરું કે આપ સૌનો પ્રેમ, આપ સૌના આશીર્વાદ હર હંમેશ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને, ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળતા આવ્યા છે. એવો જ પ્રેમ અને આશીર્વાદ આ વખતે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને મળે. આપણે સૌ સાથે મળીને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળ આપણા દેશને વિશ્વના સર્વોચ્ચ સ્થાને સાથે મળીને લઈ જઈએ, એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર દાદા આપનો. આપની વચ્ચે આપણા રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ વિનોદ તાવડેજી ઉપસ્થિત છે. તો હું હાલોલ વિધાનસભાના ચારેય મંડળ પ્રમુખોને વિનંતી કરીશ કે તેમનું બુકેથી સ્વાગત કરે, તથા અશ્વિન કાકાને પણ વિનંતી કરીશ કે તેમનું બુકેથી સ્વાગત કરશે. સ્વાગત વિધિમાં જોડવા આપણા જિલ્લા પ્રભારી છે રાજેશભાઈને બી વિનંતી કરીશ, અને વિધાનસભા પ્રભારી કેતનભાઈ બ્રહ્મભટ્ટને વિનંતી કે સ્વાગત કરશે. આપણી વચ્ચે આપણા રાજ્યસભાના સાંસદ બિહારથી જે ઉપસ્થિત છે વિવેક ઠાકોરજીનું સ્વાગત માટે હું કેતનભાઈ બ્રહ્મભટ્ટને વિનંતી કરીશ, તથા મયંકભાઈ દેસાઈને વિનંતી કરીશ. હવે આપની વચ્ચે જે બિહારથી રાજ્યસભાના સાંસદ છે વિવેક ઠાકોરજી, જે આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, જેઓ આપણા પૂર્વ યુવા મોરચાના પ્રમુખ જીતુભાઈ વાઘાણી જ્યારે ગુજરાતના યુવા મોરચાના પ્રમુખ હતા, ત્યારે વિવેક ઠાકોરજી આપણા યુવા મોરચાના ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી હતા. તો વિવેક ઠાકોરજીને વિનંતી કરતા હું હमें માર્ગદર્શિત કરે. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी. मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठनकर्ता और राष्ट्रीय महामंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी, जिला प्रभारी राजेश भाई पटेल जी, जिला अध्यक्ष अश्विन भाई, कर्मठ और लोकप्रिय जिला महामंत्री श्री मयंक भाई देसाई जी, हालोल विधानसभा प्रभारी श्री केतन भाई और इस विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार प्रत्याशी श्री जयद्रथ सिंह परमार जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और इस सभा में आए सभी भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों. परमार साहब ने सभी योजनाओं की जिक्र करने के बहुत कम समय में कोशिश की, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ योजना छूट ही गया होगा बोलना, क्योंकि इतना काम हुआ है गुजरात में और पूरे देश में कि एक छोटे से संबोधन में सबको समावेश करना असंभव है. मैं 1993 में अहमदाबाद रहने आया और मैं 10 साल यहां रहा. 2004 तक मेरी शादी हुई तो पत्नी भी गुजरात यूनिवर्सिटी से ही अपना पीएचडी खत्म की, और मैं बॉर्डर टेप में रहता था, जजेस बंगलो के पास अहमदाबाद. अपना कुछ काम था यहाँ पे जो चालू किया. एक दिन एक पूजा था, पूजा संपन्न हुआ तो पंडित जी ने कहा हवन हो गया, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको बहते पानी में कहीं आप प्रवाह कर दीजिए. मैं भी सोचा कि हाँ यही विधान है. उसको उठाया और सीधे चला गया साबरमती. अब साबरमती में बहता पानी क्या मिलेगा, वहां देख रहा हूं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. फिर मुझे लगा मैं गलत आ गया. मैं फिर पूछा कि ये कहां, बोला है साबरमती है. फिर चला गया, वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है. अब बहता पानी कहां से खोजूं. फिर कोई बताया कि इतना किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पे आपको जो है ऐसे होगा वैसे होगा, तब जाके.
आज साबरमती फ्रंट आप देख लीजिए तो विश्वास नहीं होता है कि वही साबरमती में मैं गया था, नीचे बेड पर, बगल में अस्पताल भी, आप सब जानते हो। मित्रों, इस बार का गुजरात का चुनाव बड़ा विचित्र चुनाव है। हर चुनाव में मैं आया और इस बार दिल्ली से भी एक झाड़ू भी आया हुआ है गुजरात में। एक साथ कल परसों आए हैं। आए तो आए, उस साबरमती का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जो इतने साल वहां जल नहीं मिला, उन्हीं को लेकर पदयात्रा शुरू कर दी। और जो झाड़ू वाले, उनको गुजरात का संस्कृति का कोई मतलब अंदाज ही नहीं। मैं तो यहां रहा हूं, यहां की संस्कृति ऐसे है कि घर हो या दुकान, आदमी पहले ही बाहर चप्पल या जूता खोल के ही अपने घर में भी घुसता है और अपने ऊपर। तो झाड़ू की जरूरत कहां है? धूल तो घुसेगा ही नहीं, तो झाड़ू की जरूरत कहां है? ये तो पता ही नहीं है। तो आया है बिना इस्तेमाल के, जो प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तो कैसे स्टॉकिस्ट वापस कर देता है, वैसे ही वापस हमको कर देना है। जैसे लाए हो, आए हो, वैसे ही जाए। और जो साहब उनके साथ घूम रहे हैं, जो 2 दिन पहले आए हैं, उनके झाड़ू वाले के थिंक टैंक के जो कमेटी है, उसकी वो सदस्य हैं। तो ये समझ ही भी नहीं आता है कि कौन इधर का है, कौन उधर का है। अब लगता है कि उतने दिन नहीं थे वो साहब, दक्षिण में घूम रहे थे, तो अभी आए थे, फिर वो इधर आ गई। उसके पहले उनके थिंक टैंक की सदस्य वो थी। अब बताइए कि कोई भी गुजराती, संपूर्ण गुजरात का व्यक्ति, उसको क्या यह स्वीकार होगा कि जो नर्मदा का पानी आने नहीं दिया, उसी के साथ घूम के लोग गुजरात के विकास के और गुजरात में वोट मांगने की हिमायत कर सके? अरे ये तो भावना के साथ खिलवाड़ है। उनको जानकारी है कि सौराष्ट्र में लोग शादी नहीं करते थे बच्चियों के लिए, क्योंकि वहां पानी नहीं। गुजरात आज बदल गया। मैं जब 93 में आया था गुजरात, तो मुझे लगा, मैं तो बिहार से आया था, ये अपने ही जैसा जगह है। ट्रैफिक का लाइट है, ग्रीन भी हो रहा है, लाल भी हो रहा है, सब चीज सामान्य रूप से चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र। अब जब भी गुजरात आता हूं, लगता है कि फिर कुछ बदल गया, फिर कुछ बदल गया। शिवानंद आश्रम, पहले मैं अहमदाबाद में सुबह में जाता था योगा करने के लिए, अब मैं उधर से रास्ता ही भूल गया। इतने ओवर ब्रिज बन गए, तो इधर अंडरपास हो गया है। मतलब विकास चारों तरफ दिखता है, ऐसा नहीं कि शहरों में विकास है। आज भारत में गुजरात का मॉडल जा रहा है, इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री को पूरा भारत विश्वास के साथ एक बार जिताया, दूसरी बार जिताया और 2024 में फिर तीसरी बार भी जिताने जा रहा है। और देखिए, मैं तो बहुत क्रांतिकारी भूमि से आता हूं, और गुजरात और बिहार का संबंध तो बहुत पुराना है। सभी आंदोलन इस 2 राज्य से मिलकर एक साथ शुरू हुए। तो चाहे जयप्रकाश जी आए, तो भारत में भी परिवर्तन हुआ पटना की रैली के साथ, और गुजरात में परिवर्तन शुरू हुआ। राजनीति बदल गई भारत की पहली बार। यह परिवर्तन जब भारत में शुरू हुआ फिर 2014 में, तो आपने यहां 26 सीट दिया, तो पूरी दुनिया छोड़ के हमको बिहार में भागी। तो उसी गांधी मैदान में आपको याद होगा कि जब उग्रवादी बम फोड़ रहे थे, हम 5.5 लाख की रैली किए थे, और हुंकार रैली उसका नाम था। उसी दिन तय हो गया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है, और 40 में 34 सीट हम जीत के बिहार में दिए थे उसका। और पिछले साल हम 1 सीट से रहते थे, और आज फिर आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अकेले हैं वहां। और फिर इस बार जो है, आप अपना काम करेंगे, हम वही 14 का अपना काम करके इस बार भारत में फिर वहीं पे मोदी जी का निरंतरता को हम बरकरार रखें। ये सौभाग्य आपका है।
एक से एक सपूत यहाँ पर है। आज मुझे पहली बार हालोल आया, पावागढ़ मंदिर जाने का मुझे सौभाग्य था। और वहां की जब कहानी सुनी कि ध्वजा 550 साल के बाद जो नरेंद्र भाई ही पहला व्यक्ति है जो कि ऊपर में फहरा है, और जब 370 हटा कश्मीर से, तो शामिका देवी मंदिर में भी पहली बार ध्वजा जो है वहां पर फहरा है। मंदिर दोनों थे, पहले क्यों नहीं कोई किया? पहले एक संस्कार बन गया था कि उसकी बात न करो, तो आप सेक्युलर नहीं कहलाओ। आज पूरी दुनिया जो है अनुष्ठान करते घूम रही है, क्योंकि हमको नहीं शर्म अपनी संस्कृति का। गलत क्या है? अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनता है, अगर सोमनाथ कॉरिडोर बनता है, तो इसमें गलत क्या है, यही मैं जानना चाहता हूं। अगर पावागढ़ में अगर वहां ध्वजा पर आता है, नया मंदिर वहां पर बनता है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो यहाँ की जनता को तय करना है कि हमारी निरंतरता बरकरार रहे, कि जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग जो दिल्ली से आए हुए हैं और जगह जगह से आए हैं गुजरात को बदनाम करने के लिए, इससे हमको बचना है। और फिर वही विश्वास के साथ प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देना है, जो निरंतर हम 27 साल से देते आ रहे हैं, और इसको आगे बरकरार रखना है। हिंदुस्तान के नाज है नरेंद्र मोदी जी, उस नाज को हमको निरंतर चलाते रहना है कि भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है, उस तरह से हम जो है पुराने गौरव को उनके नेतृत्व में लौटा पाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो मंदिर बढ़िया में हालो Mana biasa
મિત્રો આપણે 5 મિનિટ લાઇટ ગયું છે એટલે 5 મિનિટ શાંતિથી બેસીશું. આપણી સભા પછી ચાલુ જ છે. 5 મિનિટમાં માઇકની વ્યવસ્થા થઈ જાય છે. 5 મિનિટની આપણે રાહ જોઈશું. પોતાના સ્થાન પરથી ઊભા નહીં થઈએ આપણે. बोलो भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम 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 भारत माता की બોલો ભારત માતા કી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણે હમણાં જ સરસ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું વિવેક ઠાકોરજીએ. હેલો, હવે આપણી વચ્ચે આપણા રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી વિનોદ તાવડેજી ઉપસ્થિત છે, તો મેં એમને વિનંતી. હેલો 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 ठीक है. भारत माता की भारत माता की मंच पर विराजमान जिला के प्रभारी राजेश भाई, अश्विन भाई, मयंक भाई, अपने उम्मीदवार परमार साहब, बिहार के हमारे सहयोगी सांसद विवेक ठाकुर जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और भाई और बहनों, गुजराती मुंबई का होने के नाते थोड़ी समझती है, बोलवानो नहीं ऐसे बोलते हैं चाल से મજામાં છો? અરે ગુજરાત છે, મોદીજી थे तो તમે લોકો મજામાં જ છે.
हमारा बिहार नो दिल्ली नो बात लेकिन एक बात सही है, मैं अभी पूरे देश में घूमता हूं, महाराष्ट्र में था, मुंबई में था, दिल्ली हरियाणा बिहार जा रहा हूं या फिर उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, जहां भी जाता हूं वहां जाने के बाद लोग जितनी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की तारीफ करते हैं, उस समय वो ये भी कहते हैं, देखो नरेंद्र भाई का नाम लिया तो लाइट है, उस समय लिया नहीं हमने। तो जहां देश भर जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, तो लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की तारीफ तो करते ही है, लेकिन उसी समय देश की जनता एक बार पक्की बोलती है कि गुजरात की जनता अगर नरेंद्र भाई को चुनकर मुख्यमंत्री नहीं करती तो आज देश को इतना अच्छा नेतृत्व नहीं मिलता। गुजरात की गली से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में से दुनिया में पहुंचे और इस देश का नाम, इस भारतीय संस्कृति का नाम, उसका पूरा डंका दुनिया में अगर शुरू हुआ है तो उसका धन्यवाद किसी को देना चाहिए, तो गुजरात के आप जैसे जनता को देना चाहिए। मुझे याद है उस समय क्या माहौल था, किस प्रकार का वातावरण गुजरात में था। गुजरात में तो कांग्रेस के सभी प्रदेशों के 18 मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई को पराजित करने के लिए गुजरात में आके बैठे थे। सोनिया गांधी जी ने उस समय आदरणीय मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। उसके बाद भी गुजरात की जनता ने आदरणीय मोदी जी पर भरोसा रखा और कांग्रेस के हर मुख्यमंत्री का कहना, सोनिया जी का कहना, सबका कहना झूठ किया और इस देश को एक ऐसा नेतृत्व दिया। आपको जानकारी है कि नहीं पता नहीं। सब जब परसों G20 हुआ, यानी दुनिया के 20 देश के लोग मिले, ऐसे दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलने का मौका इसके बाद, इसके पहले भी बहुत बार आया, लेकिन इसके पहले जब आया और जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे किसी भी दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मीटिंग में जाते थे तो उनको भारत की ओर से तोहफा क्या दिया जाता था? तो ताजमहल की छोटी सी मूर्ति। ताजमहल जरूर अच्छा है, बढ़िया भी है, सातवां अजूबा भी है, लेकिन क्या वो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है? क्या हमारे देश का पहचान उससे हो सकती है क्या? परसों G20 में जब मोदी जी गए और उन्होंने अलग अलग प्रदेश के प्रधानमंत्रियों को क्या क्या दिया, तो उन्होंने इंग्लैंड के ऋषि सुनक को मातानी पचड़ी उन्होंने भेंट की, गिफ्ट की तौर पर। फिर इटली के प्रधानमंत्री को क्या दिया? पटोल पटोला का दुपट्टा दिया, पाटन का पटोला, उसका दुपट्टा दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज को क्या दिया? तो छोटा उदयपुर का राठवा आर्टिस्ट का पिठोरा पेंटिंग दिया। इंडोनेशिया के अध्यक्ष को क्या दिया? तो गुजरात का चांदी का। पूरे दुनिया में करने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं
उसकी शान बढ़ाने का काम 5 तारीख को आप करेंगे कि नहीं? बहुत सादी सिंपल बात है साहब, बहुत कुछ बड़ा चढ़ाकर आपको बताने की जरूरत ही नहीं। मतलब मुझे याद है कि 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने, उसके पहले के सभी प्रधानमंत्री, दुनिया से कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आता था, प्रधानमंत्री के आवास पर कार्यालय में जाता था, तो वो वापसी में ताजमहल लेके जाता था। 2014 के 30 मई के बाद जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विदेश का आया, वो भगवत गीता लेकर वापस गए। ये हमारी पहचान है। हमारी दुनिया में जो पहचान बनी, दुनिया में जो ताकत बनी। अभी जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया, ऑपरेशन गंगा के तहत वहां पर बचे हुए अपने छात्र बच्चों को वापस लेने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा था। उसकी जो भी टीम बनी, उस टीम का मैं एक सदस्य था और पार्टी के महामंत्री के नाते उसमें मैं अपना एक योगदान दे रहा था। यूक्रेन के सभी बच्चे वापस आने लगे। 400 बच्चे यूक्रेन के ऐसे शहर में फंसे कि जहां रशिया से लगातार बॉम्बिंग चल रही थी और वहां से बच्चे निकालना मुश्किल था। सब अधिकारी बता रहे थे, वहां गए हुए मंत्री बता रहे थे, यहाँ के उनके माता पिता बता रहे थे कि हमारे बच्चे वहां से निकलना मुश्किल है, कुछ कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा थोड़ा समय रुकिए। 6:30-7 बजे हमारी मीटिंग थी, रात को 2 बजे हमको मैसेज आया, अगले 4 घंटे में आप वहां पर सूचना कर दो, माता पिता को बोलो कि अपने बच्चों को बोलो निकलो, क्योंकि मोदी जी ने रशिया के राष्ट्राध्यक्ष को बताया कि 4 घंटे के लिए युद्ध रोकिए। अब ये किसी में हिम्मत नहीं होती है चलता हुआ वॉर रोकना। रशिया का अध्यक्ष पुतिन ऐसे किसी का सुनने वाला नहीं है। अब 56 इंच चौड़ी छाती वाला नरेंद्र मोदी जब बोलता है, हिंदुस्तान की ताकत जब उसके साथ होती है, तब इस प्रकार दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष को, रशिया के राष्ट्राध्यक्ष को यह सुनना पड़ता है। ये ताकत अगर अपनी बनी है तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ गली से दिल्ली गए हुए, दिल्ली से दुनिया गए हुए मोदी जी अपने गुजरात को भूले नहीं है। अब मैं जब गुजरात में 93-92 के समय कभी आया था, मुझे याद नहीं, और मैं अहमदाबाद में किसी मेरे दोस्त के घर गया था, तो दोस्त ने उसके छोटे 4 या 5 साल के बच्चे को कहा कि ये विनोद अंकल है। तो बच्चे ने क्या कहा मालूम है? अच्छा, वो अपने पुलिस अंकल होते हैं वैसे? तो मैंने कहा पुलिस अंकल क्या है? तो मेरे दोस्त ने कहा कि हमारे अहमदाबाद में हर 4 दिन बाद कर्फ्यू लगता है, घर के बाद पुलिस खड़ा होता है, वो अंकल इसको ज्यादा पता है, अपना अंकल इसको पता ही नहीं है। इतने दंगे होते थे, कभी यात्रा बिना दंगे की निकली क्या? आप सीनियर लोगों को पूछो। लेकिन 95 के बाद गुजरात में दंगा बंद। एक दंगा दोबारा यहां हुआ था, उसके बाद भी पूरे दंगे बंद हो गए। सिर्फ गुजरात में नहीं तो कश्मीर और पंजाब के कुछ इलाका छोड़ा तो पूरे देश में एक भी दंगा हुआ नहीं। इसका कारण यह है कि दंगा करोगे तो फंसोगे। पहले कांग्रेस के समय दंगा करता था, उसको इनाम मिलता था। जो दंगा करेगा उसको कहीं ना कहीं पैसे मिलते थे। अब यहां यह कानून है कि आप किसी आम व्यक्ति को कोई तकलीफ दोगे तो यहां सहा नहीं जाएगा। और इसलिए पूरे देश के दंगे अगर बंद हुए हैं, इसका कारण हमारी उस प्रकार की मोदी जी की काम करने का तरीका है। और इसे एक तरफ दुनिया में नाम होगा, सुरक्षा होगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो गुजरात में अलग अलग कार्यक्रम चले, 100 अलग अलग नंबर के पुलिस के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा देने का काम चला होगा।
या विकास की यात्रा हुई होगी। और इस विकास की यात्रा जो गुजरात में हो रही है उसको राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। क्या गुजरात में गलत हो रहा है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? जो मेधा पाटकर ने नर्मदा के लिए विरोध किया उसको लेकर भारत जोड़ो कर रहा है। जो नर्मदा का पानी यहां पर कच्छ में लाने के लिए जिन्होंने विरोध किया उनको लेकर अगर आप भारत जोड़ो करोगे तो ये गुजरात के लोगों के हित का है क्या? पूरे भारत जोड़ो कर रहा है, लेकिन गुजरात में आने की हिम्मत नहीं है। उनको मालूम है गुजरात में आए तो कोई आएगा नहीं, कोई साथ देगा नहीं, इसलिए 1-2 मीटिंग करके बाहर के बाहर चले गए। अगर आप भारत जोड़ो करते हैं और उसमें गुजरात को टालते हैं, इसका मतलब साफ है कि गुजरात का आदमी कांग्रेस के किसी आदमी को यहां खड़ा करने वाला नहीं है और इसलिए उन्होंने यहां आना टाला ही है। तो वो नहीं है तो उनकी बी टीम आ गई। ठाकुर साहब ने बताया झाड़ू वाले। अब मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहा कि हम बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे। हम क्या भिखारी है? अरे गुजरात का आदमी स्वाभिमानी है, अपने मेहनत से पसीने से कमाएगा, अपने हक का वो लेके रखेगा। फोकट लेने की हमारी कोई भी मानसिकता नहीं है, हम उल्टा दुनिया को देने की मानसिकता रखते हैं। और ये जो कहते हैं वो दिल्ली में देखो, पूछिए जो बात इन्होंने मुफ्त की कही है कभी दी है क्या? उल्टा वहां शराब वालों को सहायता करते हुए वो शराब वालों से पैसा इकट्ठा करके गुजरात के चुनाव में लगाने का काम आम आदमी पार्टी की ओर से हो रहा है। अब उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है तो झूठे झूठे वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। जो आदमी शराब के द्वारा पैसा कमाता है और घरों में पानी मुफ्त देने की बात करते हैं, उस पर आप कभी भरोसा रखोगे क्या? ऐसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को, जिन्होंने अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति को फंसाकर आंदोलन में उनको आगे किया, उनको अनशन करने के लिए लगाया, इसने अनशन किया नहीं, दूसरों को आगे करने का और अपनी रोटी सेकने की, ऐसे केजरीवाल को गुजरात में कोई भी नहीं पूछेगा। गुजरात तो महात्मा गांधी का गुजरात है कि जो खुद दांडी यात्रा पे निकल पड़ते हैं, जो खुद सत्याग्रह करते हैं, जो खुद आगे चलकर आंदोलन करते हैं, किसी के पीछे नहीं रहते। पीछे रहने वालों के लिए गुजरात में कोई स्थान नहीं है। और इसलिए 5 तारीख को तो मुझे लगता है ये सिर्फ गुजरात का विधानसभा का चुनाव नहीं है। परमार साहब ने कहा 2024 की सेमीफाइनल है। अगर 2024 में देश को अगर लगना चाहिए कि गुजरात विधानसभा में पिछले बार से ज्यादा विधानसभा सीटें गुजरात की जनता ने दी है, तो इस बार हमको भी आने वाले लोकसभा में 303 सांसद नहीं तो 350 सांसद देने चाहिए, तो लोग आगे चलकर मोदी जी को वोट करने वाले हैं। और अगर हक से कुछ काम किया है, उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी मुझे मिले थे और हम किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उनके चुनाव के समय एक दिन वो अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन में गए और वहां से फिर नजदीकी से गरीब कार्यकर्ता महिला थी, उसके घर भोजन के लिए गए। तो वहां भोजन करने के बाद वो बहन बता रही थी, योगी जी ये घर में जो आप बैठे हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मुझे मिला है। जो अनाज मैंने जिस चूल्हे पर पकाया वो उज्ज्वला योजना से मिला है। जो खाना मैंने पकाया वो अनाज मोदी जी के द्वारा जो 80 करोड़ लोगों को देश में दिया गया उसमें से मुझे मिला है। अगर मेरी बेटी पढ़ रही है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उसको स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए वो पढ़ रही है। एक घर में मोदी जी इतने समाये हैं, वो मां कहती है बहन मोदी जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर घर उनके द्वारा है, गैस उनके द्वारा है, अनाज उनके द्वारा है, बेटी पढ़ रही है तो उनके द्वारा है। और ये उत्तर प्रदेश की कोई बहन महसूस करती है तो गुजरात की बहनें तो ये महसूस करेगी।
कि इस प्रकार अगर मोदी जी ने हर सामान्य आदमी के जीवन में कौन सी कितनी योजनाएं हैं, अब कोरोना के समय के दिन याद करो, दुनिया में क्या हालत खराब थी, लेकिन इस देश में जिस प्रकार कोरोना के समय जो काम मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने, डॉक्टर ने, पुलिस ने, सबने किया, इस कारण इस देश में कोरोना का संकट थोड़ा कम दर से हम पार कर सके। हमने तो हमारे आज तक कोई वैक्सीन इस देश में इतनी जल्द तैयार नहीं हुई, मोदी जी ने वो करवा दी थी। और इसलिए मुझे लगता है कि केशुभाई 95 में होंगे, बाद में मोदी जी होंगे, बाद में आनंदीबेन पटेल होंगी, बाद में विजय रूपाणी होंगे, या अभी भूपेंद्र जी आपके मुख्यमंत्री है। इन सब मुख्यमंत्रियों ने गुजरात को जो विकास का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलने का काम बाकी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चल रहे हैं। और ऐसे समय में आपका एक वोट का हक बीजेपी का बनता है, मोदी जी का बनता है, और आपने वो देना है। इसलिए मैं मानता हूं कि जिस प्रकार प्रचार कर रहे हैं, मुझे डर परमार जी एक ही है कि इतना एक बढ़िया माहौल है और लोगों को लगेगा अरे वो तो वोट देने ही वाला है, मैं नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो जाएंगे ही, मेरा थोड़ा काम है, मैं निपटा के आता हूं। तो मुझे याद है, ये गांव में सूखा पड़ा होता है, अकाल, उस गांव का मुखिया तय करता है, सूखे से अपनी हालत खराब है, अकाल से अपनी हालत खराब है, तो हम सब मिलकर कल अपने ग्राम दैवत भगवान शंकर महादेव का दूध से अभिषेक करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि भाई जल्द से जल्द बारिश ला ताकि हमारे खेत खिले। सब लोग घर जाते हैं, सुबह नहा धोकर 8 बजे तैयार होते हैं। अब मंदिर में जाना है, एक कटोरा दूध लेके हर परिवार से 1 कटोरा दूध लाना चाहिए। तो सब लोग निकलने के समय एक घर में एक पत्नी अपने पति से बोलती है, सुनो जी, पति बोलते सुनाओ जी, हर घर में तो ये होता है। तो पत्नी कहती है सुनो जी, पति कहता है सुनाओ जी, पत्नी कहती है सभी घरों से तो दूध आने ही वाला है, अगर हम पानी ले गए तो किसको मालूम पड़ने वाला है। अब इतनी होशियार पत्नी एक घर में थोड़ी होती है, सभी घरों में होती है। और करते 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 महादेव को पानी का अभिषेक हुआ। वैसा 5 तारीख को मत करो, वो तो देने ही वाला है। मारा घर में मारा काम छे, मारो દીકરો છે, હા દીકરા માટે ઘરમાં રહેવાનું છે, તો દીકરા માટે घर में રહેવાનું तो परमार जी भी घर में ही રહેવાનું है। इसलिए परमार जी को इतने जबरदस्त वोटों से जिताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का झाड़ू दोबारा गुजरात में दिखना नहीं चाहिए। कांग्रेस का पंजा गुजरात की सीमा के अंदर आना ही नहीं चाहिए। इतने भारी वोटों से जिताओ, और जितने वोट आप देंगे परमार जी के लिए तो है, भाजपा का लिए ये तो है, लेकिन आपके मोदी जी ने जो बढ़िया काम किया है उनको शुभकामनाएं अगर देना है तो 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर आपने देना है। अपने भारतीय परंपरा में अगर लक्ष्मी माता को चढ़ाना है तो हम कमल का फूल चढ़ाते हैं ना। आप 5 तारीख को कमल का फूल चढ़ाओ, देखो गुजरात में लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, हर गरीब व्यक्ति खुशहाल रहेगा, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में पिछले बार से ज्यादा सीटें देकर जिताने वाले हैं। और इस समय परमार जी को ऐसी सीटों से, ऐसे वोटों से आप जिताओ कि दोबारा कोई भी यहाँ चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं करेगा, अगले बार का चुनाव अनअपद हो जाएगा। इस प्रकार काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत